Assalamu alaikum. We will discuss today the higher order differential equation, in which first of all we will discuss the homogeneous linear equations with constant coefficients. An nth order linear differential equation is of the form a n y to the power n y to the power. This is not a power, but this superscript denote the derivative. So yn means the nth derivative of y plus n minus 1 y to the power n minus 1 plus up to so on a 1 y dash means first derivative of y plus a naught y is equal to f of x. These a naught, a1 up to n are constant, and f is a function of x or any constant on some interval, and an the coefficient of the highest derivative not equal to 0 on the interval. Differential equation 1 is homogeneous if this f of x is equal to 0 and inhomogeneous otherwise. तो ये nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. होमोजीनियस होगा इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, नॉन होमोजीनियस होगा इफ़ दिस एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0. फर्स्ट टॉपिक जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो है सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स. यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ये विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हम डिस्कस करेंगे. मीन टू से दैट ये जो ए बी सी कोफिशिएंट्स है ये कांस्टेंट होंगे यहाँ पे. तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम स्टार्ट ले लें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से, यानी एन अगर हम 2 ले लें तो सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट जो है ये बनेगा a d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू 0. Consider the solution of this equation of the form y is equal to e to the power mx exponential to the power mx, where we will determine the value of this m. So हमने एक solution consider किया y is equal to e to the power mx. Differentiate this y with respect to x because we need dy by dx here and d square y by dx square. So the first derivative of this y with respect to x is given by m e to the power mx and the second derivative is given by m square e to the power mx. इसको first differentiate करेंगे तो e to the power mx into derivative of the power is m, and similarly अगर आप इसको दोबारा differentiate करेंगे तो m e to the power mx into derivative of the power m, तो m और m square e to the power mx. Substituting these value y dy by dx and d square y by dx square in this equation number 2. So यहाँ पे put करें तो a d square y by dx square is m square e to the power mx plus b dy by dx is m e to the power mx plus c into y, and the value of y is e to the power mx. अब हर एक टर्म में जो है e to the power mx आ रहा है, सो इसको हमने कॉमन लिया है और ये बचेगा a m square plus b m plus c is equal to 0. So the product of two terms in a m square plus b m plus c into e to the power mx, इसका product equal to 0 है. It means that either e to the power mx is equal to 0 or a m square plus b m plus c is equal to 0. Because if a dot b is equal to 0, then we know that a is equal to 0 or b is equal to 0. But e to the power mx is not equal to 0. Therefore, a m square plus b m plus c is equal to 0. e to the power mx 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि e to the power mx जो है ये हमने ट्रायल सोल्यूशन y is equal to e to the power mx ये हमने सोल्यूशन लिया है. सो e to the power mx अगर 0 हो गया तो y जो है वो 0 हो जाएगा और हमें 0 सोल्यूशन मिलेगा या ट्रिवियल सोल्यूशन. और ट्रिवियल सोल्यूशन हमें पता है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का ट्रिवियल सोल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता है. सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू फाइंड द ट्रिवियल सोल्यूशन बट वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन. सो e to the power mx जो है ये 0 नहीं हो सकता. इट मीन्स दैट a m square plus b m plus c is equal to 0. Now this is a quadratic equation which is called the auxiliary or characteristic equation for this equation number 2. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने रूट्स फाइंड करने. मीन टू से दैट m की वैल्यू, बिकॉज दिस इज क्वाड्रेटिक की m, सो m की वैल्यू हमने फाइंड करने. इसके दो वैल्यूज आएंगी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
तो इसके वैल्यू रूट जो है 2 रूट्स आएंगी, और वो रूट्स अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से फाइंड करेंगे तो m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a इसके इक्वल होते हैं। अब ये जो 2 रूट्स हैं इसके लिए देयर आर सर्टेन पॉसिबिलिटीज़, वो ये कि ये यहाँ से जो 2 रूट्स हमें मिलेंगे ये अगर रियल हो और डिस्टिंक्ट रूट्स हो, यानी डिफरेंट हो एक दूसरे से, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल मीन्स के इमेजिनरी ना हो, लेट से 1 2 3 इस तरह के रूट्स आ जाए, -1 -2 -3 इस तरह के रूट्स आ जाएं, और एक दूसरे से डिफरेंट भी हो यानी सेम ना हो, और ये तब पॉसिबल है व्हेन दिस डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0. So when the roots m1 and m2 are two roots of this equation 3, then the solution of this equation number 2 will be y is equal to e to the power m1x plus c to e to the power m2x, where m1 is the first root and m2 is the second root, और c1 c2 जो है these are constant. So जब आपकी रूट्स रियल और डिफरेंट आ जाए तो फिर उस केस में आपका जो सोल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये आप इस फॉर्म में लिखेंगे c1 e to the power m1x plus c2 e to the power m2x. एक्चुअली e to the power m1x एक सोल्यूशन है, e to the power m2x एक सोल्यूशन है, और यहाँ पे जो हम सोल्यूशन लिख रहे हैं y, दिस इज एक्चुअली द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ टू सोल्यूशंस by using the superposition principle, because superposition principle ये कहता है e to the power m1x और e to the power अगर e to the power m1x एक सोल्यूशन है और e to the power m2x एक सोल्यूशन है तो इसका जो लीनियर कम्बिनेशन होगा वो भी एक सोल्यूशन होगा. सो सिंपल इज दैट कि अगर रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट आ जाए तो उस केस में आपका जो जनरल सोल्यूशन है वो बनेगा c1 e to the power m1x plus c2 e to the power m2x. The second one is when the roots are real and equal, यानी अगर रियल भी हो और इक्वल भी आ जाए, लेट सपोज एक तो रूट 2 आ गया दूसरा भी 2 आ गया, एक रूट 3 आ गया दूसरा भी 3 आ गया, यानी सेम आ गए, और ये तब पॉसिबल है व्हेन दिस डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. तो इस केस में जो है ये आता है रियल और सेम रूट, ठीक है. और अगर रूट सेम आ जाए, लेट सपोज m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, यानी अगर ये दोनों सेम हो किसी खास नंबर m के, देन द सोल्यूशन, तो फिर सोल्यूशन जो है इस इक्वेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये बनेगा c1 e to the power m1x plus c2x e to the power m2x, बट m1 और m2 ये दोनों m की इक्वल है, सो c1 e to the power mx plus c2x e to the power mx. इसमें डिफरेंस ये है जो फर्स्ट केस है कि यहाँ पे एक टर्म के साथ आपने x को मल्टीप्लाई करना है, और दोनों रूट चूँकि सेम है तो ये दोनों यहाँ पे m की इक्वल, ये इसमें डिफरेंस है इस x का. ये x आप इस टर्म के साथ भी लगा सकते हैं, ये x आप इस टर्म के साथ भी लगा सकते हैं, या इसमें अगर आप e to the power mx कॉमन लेंगे तो c1 plus c2x e to the power mx. दिस इज सेकंड केस. थर्ड केस जो है वो ये है कि इमेजिनरी और कम्प्लेक्स रूट्स अगर आ जाए, कम्प्लेक्स कंजुगेट रूट तब आ सकते हैं व्हेन b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0. अगर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट के अंदर ये नेगेटिव आ गया तो फिर उस केस में आपकी रूट जो है वो इस केस में बनेगी, यानी m डैश प्लस माइनस आयोटा m. तो इस केस में आपका सोल्यूशन बनेगा y ऑफ x. फाइनली ये जो सोल्यूशन है y ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर m डैश x a cos nx plus b sin mx. This m dash is the real part of the root and m is the imaginary part of the root. So ये है जनरल प्रोसीजर. अब इसके जो है कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.